ویلکم بیک۔ بلدیاتی خبروں کا باقاعدہ آغاز کرتے چلیں اور خبروں کے آغاز میں آپ کو سب سے پہلے بتائیں کہ شہر کراچی سے شہر اقتدار اسلام آباد سفر کرنے والوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ معیاری کھانا، وائی فائی اور معیاری سیٹوں سے آراستہ گرین لائن ایکسپریس ٹرین سروس بحال کر دی گئی ہے۔ گرین لائن ٹرین چین سے آئی 46 نئی بوگیوں سے آراستہ ہے۔ ٹرین میں بزنس پولر اسٹینڈرڈ اکانومی کے ساتھ 1076 مسافروں کی گنجائش موجود ہے۔ کوچز میں 56 افراد کے بیٹھ کر سفر کرنے کی گنجائش ہے، جبکہ سامان محفوظ رکھنے کے لیے مضبوط شیلف بھی بنائے گئے ہیں۔ ٹرین کے اسلام آباد تک ٹوٹل 7 سٹاپس ہیں، جبکہ ٹرین کراچی سے براستہ حیدرآباد، روڑی، بھاولپور، خانیوال، لاہور، چکلالہ، راولپنڈی سے مارگلے اسٹیشن اسلام آباد پہنچے گی۔ ٹرین کے سفر کا ٹوٹل دورانیہ 22 گھنٹے 15 منٹ پر محیط ہے، جبکہ سفر کے دوران معیاری کھانے، بیڈ، وائی فائی اور انفوٹینمنٹ کی سہولیات مفت ملیں گی۔ کراچی سے اسلام آباد سفر کرنے والوں کے لیے بڑی خوشخبری، معیاری کھانا، وائی فائی اور معیاری سیٹوں سے آراستہ گرین لائن ایکسپریس ٹرین سروس بحال کر دی گئی ہے۔ گرین لائن ٹرین چین سے آئی 46 نئی بوگیوں سے آراستہ ہے، جبکہ ٹرین میں بزنس اسٹینڈرڈ اکانومی کے ساتھ 1076 مسافروں کے بیٹھنے کی گنجائش موجود ہے۔ کوچز میں 56 افراد کے بیٹھ کر سفر کرنے کی گنجائش ہے، جبکہ سامان محفوظ رکھنے کے لیے مضبوط شیلف بھی بنائے گئے ہیں۔ ٹرین کے اسلام آباد تک ٹوٹل 7 سٹاپ ہیں۔ ٹرین کراچی کینٹ سے براستہ حیدرآباد، روڑی، بھاولپور، خانیوال، لاہور، چکلالہ اور راولپنڈی سے مارگلہ اسٹیشن اسلام آباد پہنچے گی، جبکہ ٹرین کے سفر کا ٹوٹل دورانیہ 22 گھنٹے 15 منٹ پر محیط ہوگا، جبکہ سفر کے دوران معیاری کھانے، بیڈ، وائی فائی اور انفوٹینمنٹ کی سہولیات بھی مفت ملیں گی۔ اور یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیراعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف نے مارگلہ ریلوے اسٹیشن اسلام آباد پر گرین لائن ایکسپریس ٹرین سروس کا افتتاح کر دیا۔ گرین لائن ایکسپریس ٹرین میں سہولیات کا جائزہ افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا کہ گرین لائن کی بنیاد نواز شریف کے دور میں رکھی گئی تھی، بدقسمتی سے دیگر منصوبوں کی طرح یہ منصوبہ بھی دم توڑ گیا۔ چینی کمپنی نے گرین لائن کے لیے کام کیا۔ آج گرین لائن ٹرین میں سہولیات کا جائزہ لیا، جہاں ٹرین میں جدید سہولتیں موجود ہیں۔ جو عہدیداران، ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ریلوے کی انتظامیہ اور ہمارے معزز ممبران قومی و صوبائی اسمبلی، مہمانان گرامی، سرکاری افسران، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے، اور ایک حوالے سے اس موقع کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے کہ وہ گرین لائن جس کی بنیاد میاں محمد نواز شریف کے پچھلے دور میں رکھی گئی تھی اور اس وقت اس کا اجرا کیا گیا تھا، وہ بدقسمتی سے باقی بے شمار جو منصوبے تھے جس طرح وہ دم توڑ گئے، یہ بھی بدقسمتی سے دم توڑ گئی، اور آج اس کا جو ریوائیول ہے، اس کا جو احیاء ہے، ہم اس کو یہاں پر سیلیبریٹ کرتے ہوئے جناب خواجہ سعد رفیق صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے نہایت محنت اور ذوق اور شوق کے ساتھ آپ نے گرین لائن کو ریوائیو کیا ہے۔ اس کے ساتھ میں چائنیز کمپنی کو بھی میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے بہت اچھی ویگنز یہاں پر مہیا کی۔ میں نے ابھی ان تمام ویگن کو دیکھا ہے، اور 2 سے ہم خود گزرے ہیں۔ ماشاءاللہ بڑی جدید سہولتیں موجود ہیں، وائی فائی ہے اور فلیکسیبل
सीट्स हैं, बेड्स हैं, और सबसे बढ़ के जिसको मैं समझता हूं कि हाय साहब ने पूरी कौम को बता दिया है कि वो आउटसोर्सिंग में यकीन रखते हैं। वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक का कहना है कि रेल में मुसाफिरों के लिए ग्रीन लाइन ट्रेन सर्विस एक बेहतरीन सर्विस है। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि हमारी पूरी कोशिश है कि ग्रीन लाइन ट्रेन के मुसाफिरों को हर सहूलत मिले। इसमें वाईफाई भी है, फ्रेश खाना भी है और बेडिंग भी है, और इन सब चीज़ों की हम खुद मॉनिटरिंग भी करेंगे। साल 2013 में जब रेलवे हमारे सपुर्द हुआ तो इसका रेवेन्यू 18 अरब रुपए था, और जब हम रेलवे छोड़कर गए तो इसका रेवेन्यू 54 अरब रुपए था। हमारे दौर में महकमा रेलवे ने खूब तरक्की की। हमारे बाद यहाँ ऐसी उखाड़ पछाड़ की गई कि दयानतदार ऑफिसर्स की बेइज्जती की गई, इससे सारा निजाम खराब हो गया। हमने आपको तकलीफ नहीं दी, हमने वजीर खजाना को जहमत नहीं दी, हमने अपने महदूद तरीन वसाइल से रेलवे ऑपरेशन को चला दिया है। लेकिन मैं आपसे दरखास्त करना चाहता हूं, मैंने कभी दरखास्त आपको न पिछले 5 साल में की थी और न इतने इस 9-10 माह में, कि रेलवे को एक ताकत का टीका चाहिए है, क्योंकि हमें पेंशन्स के लिए और पेज के लिए सख्त मुश्किलात का सामना है, क्योंकि 1.5 महीने के करीब हमारा ऑपरेशन हॉल्ट पे रहा है, तो रेवेन्यू लॉस बहुत हो गया है। अगर मुमकिन हो, मुझे पता है कि वजीर खजाना निहायत दबाव में काम कर रहे हैं और पूरा मुल्क उनकी तरफ देखता है, आप अगर थोड़ी सी हमें पुश कर देंगे, सपोर्ट कर देंगे, ताकि जो हमारा मजदूर मेहनत कश और पेंशनर है वो उसका चूल्हा जलता रहे, तो हम अगले 6, 7, 8 माह में इस बहरान पे काबू पा लेंगे। मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूं कि जो वे फॉरवर्ड है, मुख्तसर बात करूंगा लेकिन वो बिल्कुल काम की बात। इस वक्त जनाब सूरत हाल ये है कि हमें रोजाना तकरीबन 15.5 करोड़ हम कमाते हैं और हमें कम से कम 20 करोड़ रुपया रोज का चाहिए है। अब ये गैप कैसे पूरा हो, ये गैप हम हुकूमत पर नहीं डालना चाहते। मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का शुक्रगुजार हूं, 4-5 फैसले थे मुख्तलिफ, कल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है और रेलवेज को अपनी जमीनों को कमर्शियली इस्तेमाल करने की इजाजत फाइनली दे दी है। नई कोशिश से आरास्ता ग्रीन लाइन ट्रेन शहर कराची से अपने पहले सफर पर रवाना हो गई है। डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट रेलवे कराची शाहिद समू ने अफसरान के हमरा मुसाफिरों को अलविदा कहा। कहते हैं कि ग्रीन लाइन पाकिस्तान की आरामदेह तरीन सवारी होगी। ग्रीन लाइन ट्रेन में टॉप ऑफ दी लाइन सहूलियात दी जाएंगी। मुफ्त सहूलियात में आला मयार का नाश्ता, खाना, बेडिंग और यूटिलिटी पैक शामिल है। ये सहूलियात पाकिस्तान की किसी और ट्रेन में मैसर नहीं है। ग्रीन लाइन ट्रेन की मुख्तलिफ कैटेगरीज का किराया इन सहूलियात के पेश नजर रखा गया है। इसी पर बराह रास्त तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे शुजात कुरैशी से। जी शुजात कुरैशी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी है कि सैलाब की वजह से जो ग्रीन लाइन रेल जो सर्विस बंद हो गई थी 5 माह से, वो आज दोबारा शुरू होने जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उसका इफ्तिताह किया। उसके बाद जो है कराची से ये रवाना होगी। हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी DS शाहिद रसूल साहब। जनाब, बताइएगा कि जो सर्विस शुरू करने जा रहे हैं इसमें फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं और सैलाब की वजह से कितनी मुश्किलात जो हुई थी अब वो कम हो सकेंगी? ये जो हम गाड़ी अभी शुरू की है हमने, इसमें जो पैसेंजर्स के लिए जो एमिनिटीज़ हैं वो हैं, वाईफाई है इसमें जो है ना मोबाइल चार्जिंग की फैसिलिटी दी हुई है, मिनरल वाटर्स की फैसिलिटी दी हुई है, और इंटरटेनमेंट के लिए हमने जो है ना वो LCDs जो है ना दी हुई है। तो ये बहुत अच्छी सर्विस है। इसमें ये टॉप ऑफ द लाइन जो चाइना से नए कोचेज़ आए हैं वो हम इसमें दे रहे हैं। इसमें कितनी कोचेज शामिल हैं? इसमें 17 कोचेज़ हैं और ये मुझे बताइएगा प्लान के साथ उन्हीं से। और ये मुझे बताइएगा कि ये सर्विस जो है कराची से कहाँ कहाँ तक जाएगी? ये कराची से हैदराबाद, हैदराबाद से फिर रोडी से फिर जो है ना आगे बावलपुर, आखिरी इसका डेस्टिनेशन और लाहौर, और आखिरी जो है ना इसका मरगला है, पिंडी के बाद मरगला, इस्लामाबाद। और ये जो आखिरी जो मंजिल है उसका ड्यूरेशन टाइम क्या होगा? ये टोटल टाइम इसका 22 घंटे 15 मिनट है।
बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे डिप्टी डीएस शाहिद साहब, और उनका ये कहना है कि ये जो सर्विस शुरू की है इसमें बहुत सी फैसिलिटीज़ हैं और जो पैसेंजर हैं वो सफ़र करके यकीनी तौर पर लुफ्त अंदोज़ भी होंगे और जो है इसके साथ साथ जो सहूलियात दी गई हैं उनसे वो आरास्ता भी होंगे। जी ठीक है शुजात कुरैशी, आपका बेहद शुक्रिया। दूसरी जानिब आपको बताएं कि गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी ने तीसरे मैरीगोल्ड फेस्टिवल का इफ्तिताह कर दिया है। इस मौके पर गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी ने कहा कि शहर कराची की रौनकें और रानाइयाँ एक बार फिर से बहाल हो रही हैं। एमक्यूएम का हल्का बंदियों का मुतालबा जायज़ है। एमक्यूएम के बॉयकॉट के बाद लोगों ने वोट कास्ट नहीं किया। गवर्नर ने मजीद कहा, जो भी शहर के लिए बेहतर काम करेगा वो जीतेगा। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी ने फेरियर हॉल में फूलों की नुमाइश के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हम चाहें तो पूरा सूबा फूलों की तरह सजा सकते हैं। वज़ीर बल्दियात से बात हुई है, जल्द शारे फैसल पर शजरकारी होगी। यहाँ पर देखकर इंतहाई दिली मुसर्रत है कि अगर हम चाहें तो हम पूरा शहर और पूरा सूबा इसी तरह फूलों से सजा सकते हैं। और आज जब ये दिखा दिया गया है कि ये सब पॉसिबल है, तो अभी मैं नासिर शाह साहब से भी यही कह रहा था और उन्होंने बड़ी अच्छी बात हमें अभी बताई है कि इस पर इन्होंने ख़ास तवज्जो देते हुए एक खुसूसी बजट एयरपोर्ट से जैसे ही हम निकलेंगे शारे फैसल से लेकर और मेट्रोपोल तक ग्रीन बेल्ट के ऊपर इसी तरह से आपको खूबसूरत रंगारंग फूल नज़र आएंगे। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने सियासी सूरत हाल पर तबसरा करते हुए कहा कि बतौर सियासतदान चौधरी फवाद की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हैं, लेकिन मकाफात अमल है। उन्होंने इमरान खान के बारे में कहा कि वो बेहतरीन स्पोर्ट्स मैन है लेकिन बेहतरीन सियासतदान साबित नहीं हुए। गिरफ्तारियों की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा मजम्मत करती है और हम इन चीज़ों को बेहतर नहीं समझते, लेकिन ये मकाफात अमल है। खान साहब का जिक्र ज़रूर होगा, लेकिन क्या जिक्र होगा? ऐसे ही जिक्र होगा कि इमरान खान कामयाब क्रिकेटर और नाकाब तरीन प्राइम मिनिस्टर रहे। नासिर हुसैन शाह का कहना था कि सहाफी बरादरी भी लगाई बुझाई छोड़ दे। पीपल्स पार्टी को बल्दियाती इलेक्शन में सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, मेयर हमारा होगा। जमात इस्लामी शहर के मफाद में साथ दे, डेप्टी मेयर जमात इस्लामी का बनाने को तैयार है। अददी लिहाज से पीपल्स पार्टी का मेयर आना चाहिए और हम तो मिल के काम करना चाहते हैं। जमात इस्लामी के डिप्टी मेयर हों ताकि भलाई हो, फिर गवर्नर साहब की सरपरस्ती भी हो, सब लोग साथ हों, क्योंकि कराची इस वक्त वहाँ पे एक मुस्बत सोच चाहिए, मुस्बत वो एफर्ट चाहिए जिसके तहत हम यहाँ पे सबकी खिदमत कर सकें। 3 रोजा नुमाइश फेरियर हॉल में जारी रहेगी, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद पहुँच रही है। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि सिंध के वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह का कहना है कि शहर कराची की मेयरशिप पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हक है। कहा कि कराची की तरक्की के लिए मज़बूत सोच की ज़रूरत है। शहर की तरक्की के लिए मिलकर काम करना चाहिए। कराची और हैदराबाद के अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुस्तरद कर दिया। इमरान खान तारीख का हिस्सा बनते जा रहे हैं। बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा बागात की जानिब से कराची के फेरियर हॉल में गेंदे के फूलों की 3 रोज़ा नुमाइश का एहतमाम किया गया। शहरियों की जानिब से इस नुमाइश को बेहद सराहा गया। मौसम की सुरमई शाम और मुख्तलिफ रंगों से मुज़य्यन गेंदे के फूलों की खुशबू फेरियर हॉल के सब्ज़ाजार को मुअत्तर
बल्दिया उस्मा कराची के महकमा बागात ने फेरियर हॉल में गेंदे के फूलों की नुमाइश का एहतमाम किया। गेंदे के फूलों के शोख रंग और भीनी भीनी खुशबू शहरियों को अपनी तरफ खींच लाई। वैसे कराची में जहाँ तक मुझे याद है देखा है, इतना फ्लावर्स मैंने देखी नहीं थी, लेकिन यहाँ पे जब आई तो मुझे अच्छा लगा फ्लावर्स देखकर। और आई होप कि पूरा कराची में अगर ग्रीनरी हो और इस तरह फ्लावर्स हों, जितने भी पार्क्स हैं, तो वो काफ़ी अच्छा लगेगा। मुझे यहाँ पे मज़ा आ रहा है, ये जगह भी अच्छी है, मुझे तो सारे फूल अच्छे लगे हैं, कलरफुल से हैं और प्यारे से हैं। फूलों से मोहब्बत करने वालों का कहना था कि मुख्तलिफ रंगों के फूल न सिर्फ आंखों को भले लगते हैं बल्कि फिजा को भी मुअत्तर करते हैं। कलरफुल फ्लावर्स हैं और अच्छा इवेंट है, मौसम के हिसाब से बहुत अच्छा है। कराची में इवेंट्स अब जरा कम हो रहे हैं जब से ये कोरोना का टाइम है, तो अब हो रहा है तो अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छे लग रहे हैं यहाँ पे, और इनका जो है वो लुक ही अच्छा, मतलब बिल्कुल चेंज कर दिया लुक पूरे पार्क का, और बहुत अच्छा लग रहा है। कराची के फेरियर हॉल में गेंदे के फूलों की नुमाइश 3 रोज तक जारी रहेगी। सिंध के वज़ीर मेहनत व अफराद क़ुव्वत सईद गनी की बात करेंगे, जिनका कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने कल जो 3 यूसीज का नतीजा रोका है वो इंतहाई अफसोसनाक है। हमारा मुतालबा इलेक्शन कमीशन से है कि वो नतीजा फौरी जारी करे। हम कानून का रास्ता ही इख्तियार करेंगे, आइन इलेक्शन एक्ट और सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट जो कहता है बस वो करे, कोई एतराज़ नहीं। इसमें अगर 60 सीटें भी चली जाएं हमारी तो मसला नहीं है। इस किस्म के बड़े इदारों को हरगिज़ दबाव का शिकार नहीं होना चाहिए। सूबाई वज़ीर सईद गनी की पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के हमरा सिंध असम्बली में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि इलेक्शन कमीशन ने 3 यूसीज का नतीजा रोका है जो इंतहाई अफसोसनाक है। इलेक्शन कमीशन जमात इस्लामी के दबाव में आकर कराची के बल्दियाती इंतखाबात को मुतनाज़ा न बनाए। आपने इन 6 हलकों में जो जीतने वाले उम्मीदवार थे उनको सुने बगैर, आरोस को सुने बगैर आपने सारा अमल जो है वो रुकवा दिया और गैर कानूनी तौर पर रुकवाया, सिर्फ इसलिए कि जमात इस्लामी शोर ज्यादा मचा रही थी। हम नहीं कर रहे थे शोर, और ये मैं आपको बता दूं, हमने अपने तमाम उम्मीदवारों को ये कह दिया है कि जिन जिन के पास इस किस्म की शिकायत है और हैं वो ट्रिब्यूनल ना जाए, इलेक्शन कमीशन जाए। अब अगर कोई शख्स इलेक्शन कमीशन के पास दरखास्त देके चला जाए सादे कागज पे कि जनाब ये 3 भी हैं, उन्होंने कहा इन 3 को भी इसमें डाल दो, नोटिफिकेशन डाल दो, कैसे रोक दो भाई? कोई कानून है नहीं है, कोई ज़ाब्ता है नहीं है, मतलब किसी की ख्वाहिश पे चलना है, फरमाइश पे चलना है तो अलग बात है। सईद गनी का कहना था कि पीपल्स पार्टी समेत किसी भी जमात के साथ नाइंसाफी हुई तो उसका अजाला होना चाहिए। उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन अपने इख्तियारात के मुताबिक इन मामलात को देखेगा। अगर पीपल्स पार्टी के साथ ज्यादती हुई है उसका अजाला होना चाहिए, अगर जमात इस्लामी के साथ ज्यादती हुई है उसका अजाला होना चाहिए, अगर पीटीआई के साथ ज्यादती हुई है उसका अजाला होना चाहिए। हम नहीं इसमें होना चाहिए। एक तरफ वो कहते हैं कि जी आरओ जो है वो रिजल्ट चेंज करते हरा देते हैं, एक तरफ आरओ ने जितवा दिया, रिकाउंटिंग में हार गए, उस पर भी कहते हैं ये भी कबूल नहीं। सईद गनी का मजीद कहना था कि कराची के बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के नताइज इत्मीनान बख्श हैं, जबकि जिला वस्ती में हमारी तवक्कुआ ज्यादा नहीं थी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की सदारत में केएमसी के महकमा जाती सरबराहान का इजलास हुआ। एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान की केएमसी के वसाइल और मसाइल से मुतालिक गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी को ब्रीफिंग। केएमसी के महकमा जाती अफसरान के इजलास की सदारत करते हुए गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना था कि कराची की तरक्की के लिए 5 साल मंसूबा तैयार किया जाए। अगले 5 साल में कराची क्या होगा इस मंसूबे से पता चलना चाहिए। इस मंसूबे में कराची के तमाम ज़रूरियात को शामिल किया जाए। केएमसी अफसरान शहर की बेहतरी और तरक्की के लिए भरपूर मेहनत करें। गवर्नर सिंध का मजीद कहना था कि केएमसी पाकिस्तान का सबसे बड़ा बल्दियाती इदारा है, जबकि इस लिहाज से इसकी जिम्मेदारी भी ज्यादा है। केएमसी के रेवेन्यू में इजाफे के लिए इकदाम किए जाएं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने गवर्नर सिंध को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि कराची में केएमसी का लैंड कंट्रोल 27% है। केएमसी शहर में 47 पार्क्स और 106 सड़कों की देखभाल करती है। केएमसी के अफसरान अपने अपने शोबे में तजुर्बा रखते हैं और बेहतर कारकर्दगी का भी मुजाहरा कर रहे हैं।
ایڈمنسٹریٹر ڈی ایم سی شکیل احمد کہتے ہیں کہ ٹیم ورک کے طور پر کام کر کے ہر مسئلے پر قابو پایا جا سکتا ہے کسی تفریق کے بغیر۔ ضلع شرکی کو سہولیات سے آراستہ کرنا ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ میونسپل کمشنر فہیم خان اور دیگر افسران کے ہمراہ محمود آباد اور عباس ٹاؤن کے دورے کے دوران ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرکی شکیل احمد نے کہا کہ ترقیاتی کام کسی نوعیت کا کیوں نہ ہو معیاری ہونا چاہیے۔ عباس ٹاؤن میں طویل عرصے سے ترقیاتی کام نہیں ہوئے جو اب تیزی سے جاری ہیں۔ اس طرح ضلع شرکی میں سڑکوں، پارکوں، اسٹریٹ لائٹ سمیت دیگر بلدیاتی سہولیات کو مرحلہ وار بہتر کریں گے۔ ضلع شرکی کے مکینوں کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے جتنی زیادہ کوششیں کر سکتے ہیں کریں گے، جبکہ اس کے نتائج سب کو نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس موقع پر سپرنٹینڈنگ انجینئر سلمان میمن، ایگزیکٹو انجینئر جمال عباس نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ عباس ٹاؤن میں جاری ترقیاتی کاموں کے حوالے سے ترقیاتی کام تیزی سے جاری ہیں جنہیں جلد ہی مکمل کر لیا جائے گا۔ دورے کے دوران ڈائریکٹر انسداد تجاوزات، ڈپٹی ڈائریکٹر ڈی ایم ارشاد علی اور اسسٹنٹ ایگزیکٹو انجینئر راشد فیاض بھی موجود تھے۔ خبروں کا سلسلہ جاری ہے، حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم ہے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے یہاں آپ کو بتائیں کہ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کورنگی شریف خان نے کہا ہے کہ کتاب نے دنیا میں ترقی کی، راہ ہموار کی، لیکن اب دور ڈیجیٹل چیزوں کا ہے، ہمیں نئی نسل کو کتب بینی سے روشناس کرانا پڑے گا۔ بلدیہ کورنگی میں طلباء اور طالبات کے لیے 2 روزہ کتب میلے کی تیاریاں مکمل کر لی گئیں۔ کتب میلہ 28 سے 29 جنوری تک قائد پارک ماڈل زون میں منعقد کیا جائے گا۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کورنگی محمد شریف خان نے میونسپل کمشنر اشفاق ملا کے ہمراہ قائد پارک ماڈل زون کا دورہ کیا اور کتب میلے کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کورنگی نے کہا کہ کتاب نے دنیا میں ترقی کی راہ ہموار کی، لیکن اب دور ڈیجیٹل چیزوں کا ہے، ہمیں نئی نسل کو کتب بینی سے روشناس کرانا پڑے گا۔ اگر کتاب ساتھ ہے تو آپ تنہا نہیں۔ یہ کتب میلہ طلباء اور طالبات کے لیے سجایا گیا ہے تاکہ نئی نسل کتاب کے ورق پلٹنے کے لطف سے آشنا رہے۔ آج ہم پارک میں کو اپنا فائنل دیکھنے آئے کہ 2 روزہ جو کتب میلہ جو لگایا ہے طلباء طالبات کے لیے، اس کی تیاری کے حوالے سے آئے، اور آج اسی حوالے سے میں یہاں کے ڈی ایم سی کورنگی کے رہنے والے جتنے بھی طلباء طالبات ہیں اور معززین شہری ہیں، ان سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور وزٹ کریں اور اس کتب میلہ میں آ کر اپنے بچوں کو لے کر آئیں۔ 2 روزہ کتب میلے میں نامور پبلشرز بھی اپنے اسٹال لگائیں گے جس میں مختلف موضوعات پر قومی اور عالمی کتب رکھی جائیں گی۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کورنگی محمد شریف خان نے طلباء اور طالبات سے اپیل کی کہ کتب میلے میں جوک در جوک شرکت کر کے کتابوں سے محبت اور لگاؤ کا اظہار کریں۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ غربی سید شبیر الحسن نے کہا ہے کہ اورنگی ٹاؤن گلشن بہار میں سالانہ تبلیغی اجتماع گاہ آنے والے راستوں میں بلدیاتی سہولیات کی فراہمی کا آغاز کر دیا گیا ہے، جبکہ سالانہ اجتماع کے دوران زائرین کو ہر ممکن بلدیاتی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ غربی سید شبیر الحسن نے سپرنٹینڈنگ انجینئر ایکسین B&R کے ہمراہ اجتماع گاہ اور اطراف کے علاقوں کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران انہوں نے راستوں کو ٹریکٹر بلیڈ اور لوڈر کے ذریعے ہموار کرنے کے کاموں کا بھی معائنہ کیا۔ اس موقع پر ایڈمنسٹریٹر بلدیہ غربی نے سپرنٹینڈنگ انجینئر اور ڈائریکٹر انکروچمنٹ کے ہمراہ اجتماع گاہ کے منتظمین سے ملاقات کی اور اپنے بھرپور تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ سید شبیر الحسن نے بلدیاتی افسران کے ہمراہ اجتماع گاہ اور اس کے اطراف میں موجود زائرین کے لیے آنے اور جانے والے راستوں پر موجود تمام مسائل کا جائزہ لیا۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ غربی کا کہنا تھا کہ اورنگی ٹاؤن گلشن بہار میں سالانہ تبلیغی اجتماع گاہ آنے والے راستوں میں بلدیاتی سہولیات کی فراہمی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اجتماع کے دوران زائرین کو ہر ممکن بلدیاتی سہولیات فراہم کریں گے۔ کوشش تو ہماری کارپیٹ کی ہے، لیکن ان سے ہماری بات ہوئی ہے انتظامیہ سے، ان سے ہم نے کہا ہے کہ دیکھیں اگر ہم نہ کر پائے تو کم سے کم اس طرح ہوگا کہ ہم موٹیبل اس کو کر دیں تاکہ اجتماع آسانی سے ہو جائے۔ لائٹنگ کا انتظام ہوگا، صفائی کا انتظام ہوگا، اسپرے ہوگا، اور باقی جو 4 دن کا اجتماع ہے انشاءاللہ
पुरअमन तरीके से होगा। दौरे के दौरान एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया गरबी ने डायरेक्टर इंक्रोचमेंट को इज्तिमा गाह के अतराफ तजावुजात के खात्मे को यकीनी बनाने की हिदायत करते हुए कहा कि इज्तिमा गाह आने वाले रास्तों को जल्द अज जल्द हमवार किया जाए, दरख्तों और झाड़ियों की कटाई, नकासियाब और रोशनी की फराहमी के लिए खुसूसी इंतजामात किए जाएं। बीरपुर खास म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर शफीक शाह ने शहर भर की वाटर सप्लाई स्कीमों का दौरा किया और शहरियों को 2 वक्त पर पीने के पानी की सप्लाई का पाबंद किया। शहर भर की वाटर सप्लाई स्कीमों के दौरे पर मीडिया से बात करते हुए मीरपुर खास म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर शफीक शाह ने कहा कि शहर भर की वाटर सप्लाई स्कीम पब्लिक हेल्थ से दोबारा बल्दिया के हैंड ओवर हो चुकी हैं, जिसके लिए अमले की तैनाती और दीगर इंतजामात के लिए स्कीमों का दौरा किया गया था ताकि इंतजामात का बगौर जायजा लिया जाए। शफीक शाह का मजीद कहना था कि शहर भर की तमाम वाटर सप्लाई स्कीमों पर अमले को सख्ती से हिदायत जारी की गई है कि शहर भर में वक्त की पाबंदी के साथ पानी की सप्लाई भी जारी रखी जाए। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया उज़्मा कराची डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान, मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर शुजात हुसैन की खुसूसी हिदायत पर सीनियर डायरेक्टर लैंड एंड इंक्रोचमेंट बल्दिया उज़्मा कराची इमरान अहमद राजपूत की ज़ेर निगरानी डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में तजावुजात के खिलाफ ताबड़तोड़ ऑपरेशन किया गया। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट जमशेद डिवीजन में जमशेद रोड और इसके अतराफ दूसरे रोज भी तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई जारी रही। सरकारी जगह पर बनाई गई दुकान मिसमार कर दी गई। मुख्तलिफ मकामात पर रोड और फुटपाथ पर रखा गया मुतादिद सामान जब्त कर लिया गया। कार्रवाई में डायरेक्टर लैंड डिस्ट्रिक्ट ईस्ट खुर्शीद मुकर्रम और डेप्टी डायरेक्टर अमीन लाखानी ने हिस्सा लिया। इस मौके पर स्टाफ एंटी इंक्रोचमेंट, इलाका पुलिस और रेंजर्स भी मौजूद थी। और यहाँ आपको बताते चले कि शहर कराची में काला पुल पर लोड शेडिंग के खिलाफ इलाका मकीन सरापा एहतजाज हो गए हैं। इलाका मकीनों की जानिब से सड़क को ब्लॉक कर दिया गया है, जबकि इलाका मकीनों की लोड शेडिंग के खिलाफ शदीद नारेबाजी जारी है। इलाका मकीनों का कहना है कि 2 रोज से इलाके में बिजली नहीं है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे शुजात कुरैशी से। शुजात कुरैशी, कहिएगा कितने रोज से बिजली नहीं है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ काला पुल के करीब से। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एहतिजाज किया जा रहा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक शदीद जाम हो चुका है। ये कई घंटे गुजर चुके हैं और जो है उसके बावजूद ट्रैफिक को बहाल नहीं किया जा सकता। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि वो जो FTC से काला पुल और कोरंगी जाने वाला जो ट्रैक है, यहाँ पे सैकड़ों गाड़ियाँ फंस चुकी हैं। लोग जो है पैदल सफर करने पे मजबूर हो गए हैं। जो मोटरसाइकिल सवार हैं वो अपनी गाड़ियां फुटपाथ से दूसरे ट्रैक पर लाने पर मजबूर हो गए हैं। कई घंटे गुजर जाने के बावजूद जो है ट्रैफिक की रवानी को बहाल नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सका। और जो ट्रैफिक पुलिस है वो मुकम्मल तौर पर हमें गायब नजर आ रही है। इसी तरह से अगर बात की जाए तो कई घंटे गुजर चुके हैं, उसके बावजूद जो है ये एहतिजाज खत्म नहीं करवाया जा सका पुलिस की जानिब से और ना ही इंतजामिया की जानिब से। जो मुजाहिरीन है उनका ये कहना है कि बिजली की बंदिश जो है कई दिनों से की जा रही है और गैर एलानी लोड शेडिंग की जाती है और सर्दियों के दिन के बावजूद जो है बिजली की लोड शेडिंग समझ से बालातर है। इस शहर कराची में इस तरह के एहतिजाज जो है अब शहरियों के लिए ज़हनी अज़ियत का बाइस बन चुके हैं। लोग इस कदर बेबस और परेशान हो गए हैं कि कई घंटे ट्रैफिक में फंसने पर मजबूर हो जाते हैं। जो बसें हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वो जो है पब्लिक को इसी मुकाम पर उतार कर वापस का रुख ले लेती है। लोग अपनी मंजिलों को पैदल सफ़र करने पर मजबूर हो जाते हैं मंजिलों तक पहुंचने के लिए और मोटरसाइकिल सवार जो है फुटपाथ से चढ़ा लेते हैं। और इसी तरह से जो फैमिलीज हैं वो भी जो है हमने पैदल जाती हुई देखी हैं। तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। सिर्फ एक मुकाम यही नहीं है, और भी बहुत सी जगह पर ट्रैफिक रूटीन में जाम रहता है, लेकिन ये जो ट्रैफिक अभी जाम है इसको कई घंटे गुजर चुके हैं। इसकी वजह से ये है कि बिजली की लोड शेडिंग, इंतजामिया हमें गायब है, कहीं पर हमें नजर नहीं आती। ट्रैफिक पुलिस भी जो है ख्वाब खरगोश के मजे लेती हुई नजर आ रही है। ट्रैफिक पुलिस से बात की जाए तो वो कहते हैं कि एहतिजाज किया जा रहा है और इस वजह से ट्रैफिक जाम है। सिर्फ ये इतना बता देते हैं और अपना काम पूरा समझते हैं, फर्ज पूरा समझते हैं, लेकिन शहरी बेबस और बेहाल हो चुके हैं। उनका एक ही मुतालबा है, ट्रैफिक को बहाल किया जाए ताकि शहरी अपनी मंजिल तक वक्त पर पहुंच सकें। जी
ठीक है, शुजात कुरैशी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की गफलत और लापरवाही ने शहर खामोशा को भी ना बख्शा। मोहम्मद शाह कब्रिस्तान में सीवरेज का गलीज पानी कब्रों के अंदर तक जा पहुंचा। जुस्द खाकी की बेहुरमती भी सीवरेज बोर्ड इंतजामिया का किबला दुरुस्त ना कर सकी। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की मदहोश इंतजामिया ने शहर की तरह कब्रिस्तानों को भी लावारिस छोड़ दिया है। कब्रों की बेहुरमती पर भी सीवरेज बोर्ड इंतजामिया को होश ना आ सका। बल्दियाती इदारों की नाअहली से ना जीते जागते इंसान महफूज हैं, ना ही मुर्दे। सीवरेज के बोसीदा निजाम की तबाहकारियां शहर खामोशा तक पहुंच गईं। नॉर्थ कराची के मोहम्मद शाह कब्रिस्तान में सीवरेज का गलीज पानी कब्रों के अंदर तक जा पहुंचा। गलाजत में लथरे जसद खाकी की बेहुरमती भी सीवरेज बोर्ड इंतजामिया का किबला दुरुस्त ना कर सकी। ख्वाब गफलत के नशे में मदहोश कराची सीवरेज बोर्ड इंतजामिया ने शहर की तरह कब्रिस्तानों को भी लावारिस छोड़ दिया। कुर्बो जवार के मकीन और अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा खानी के लिए आने वाले शहरियों का कहना है कि सीवरेज का पानी कई हफ्तों से मौजूद है, फिर भी अमला गायब है। सीवरेज बोर्ड इंतजामिया को जिंदों का ख्याल नहीं, कब्रिस्तान के लिए इकदामात की तवक्को बेसूद है। 3 महीने से पानी आ रहा है, ये गंदा पानी सीवरेज का, और ये लोग आबादी का पानी है, ये सारा कब्रों में जा रहा है। लोगों को मरने के बाद भी मतलब अजियत दी जा रही है, कब्रों में पानी घुस रहा है। हुकूमत के बंदे या कोई दूसरे इसको देख नहीं रहे, इसको देखना चाहिए, इंतज़ाम करना चाहिए इसका। ऐसा क्या करा, मुश्किल बहुत है, सारा पानी कब्रों में जा रहे हैं, कपड़े पली गंदा हो रहे हैं। ये सीवरेज का पानी भरा हुआ है, इसको कम से कम 3 महीने हो गए। अब पीछे जाके देखें, सारी कब्रों के अंदर से पानी निकल रहा है। कब्रों में से जितना भी सीरी का पानी आ रहा है ना, सारा रोटों पे आ रहा है, फिर रोटों पे हो गए, फिर सारा बाहर निकल रहा है। अब इसका कुछ हल कर दें, आपकी मेहरबानी। यहाँ जिंदे को भी सुकून नहीं है, तो फिर मरने के बाद लोगों को सुकून नहीं है। सबसे बड़ा अफसोस की बात तो ये कि कब्रिस्तान है और यहाँ के मुर्दे हैं, जो भी हैं, नेक लोग हैं, गुनाह होता है, बददुआ लगती है। आने जाने वाले जो कब्रिस्तान में आ रहे हैं दुआ करने फातिहा, उनके लिए भी तकलीफ, पानी डालने वालों के लिए तकलीफ। शहरियों ने कब्रों की बेहुरमती पर कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड इंतजामिया पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए सिंध हुकूमत, वज़ीर बल्दियात और एडमिनिस्ट्रेटर कराची से इस मामले का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। और यहाँ आपको बताते चलें कि पूरा शहर कराची ही इस वक्त बल्दियाती सहूलियात से नापैद हो चुका है और शहर कराची तबाही के दहाने पर है। ऐसे में कराची सेंट्रल जेल के सामने मरकजी सड़क पर पानी और सीवरेज की लाइन फट गई। सीवरेज और साफ पानी की लाइनें फटने से सड़क टूट फूट का शिकार हो गई और बड़े बड़े गड्ढे और गंदे पानी से इलाके में ताफुन उठने लगा। सेंट्रल जेल के मेन गेट के सामने सीवरेज और साफ पानी की लाइनें फटने की वजह से मेन रोड पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं, जिनमें पानी जमा है। पीआईबी कॉलोनी, जेल चौरंगी और जमशेद रोड जाने वाले ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासिर हो रही है, जबकि मेन रोड पर कारोबार करने वाले दुकानदारों का कारोबार भी मुतासिर हो रहा है। पानी जो है आए दिन खड़ा हो जाता है, हम लोग जितने भी दुकानदार हैं सब इससे तकलीफ में। आए दिन दुकान के आगे पानी बन जाता है, लेडीज, खवातीन, बच्चे जो जाने के वो भी तकलीफ में होते हैं। अच्छा, ये एक दिन का काम नहीं है, एक दिन चलेगा, दूसरे दिन रुक जाएगा, फिर तीसरे दिन फिर शुरू हो जाएगा। अच्छा, जब शुरू हो जाता है तो यहाँ पर इतना पानी, आज तो हमने लाइनें वाइनें बनाई हुई है कि सीधा जाए, मिट्टी वगैरह रोक करना, नहीं तो ये पूरा एक कीचड़ बन जाता है। स्कूल है बराबर में, स्टूडेंट्स आते हैं, फैमिलीज गुजरती हैं, अब वो आना जाना जो है वो इसी पानी में से जा रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि मतलब यहाँ के मेयर वगैरह को चाहिए, अभी इलेक्शन हुए, जीत जाते हैं, लेकिन वोट लेने जब आते हैं तो बोलते हैं कि सब काम कर लेंगे, लेकिन जब वोट लेकर जब जीत जाते हैं तो फिर गायब हो जाते हैं बिल्कुल। और यहाँ पे आगे स्कूल्स हैं, स्टूडेंट्स वगैरह आते हैं, उनके कपड़े खराब होते हैं। अरबों रुपए कराची की सड़कों को बेहतर करने के दावेदारों को जेल के सामने अहम तरीन शाहराह कराची से बाहर की शाहराह लगती है, जबकि इस अहम तरीन रोड का कोई पुरसाने हाल नहीं है। कैमरामैन तारिक अशफाक के साथ जुल्फकार पीरजादा, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। और अब रुख करेंगे कराची के जिला मलीर का, जहां काला बोर्ड से सौदाबाद जाने वाली सड़क की खस्ता हाली अब भी बरकरार है। तरक्याती कामों के नाम पर खोदी गई सड़क ताहाल जूं की तू है। काला बोर्ड से सौदाबाद चौरंगी तक सड़क की तामीर, नकासियाब के निज़ाम और बरसाती नाले की बहाली, जबकि पानी की नई लाइनें डालने का काम भी इंतहाई सुस्त रवि का शिकार दिखाई देता है। कई माह गुजर जाने के बावजूद भी सड़क की तामीर मुकम्मल न हो सकी। टूट फूट का शिकार सड़क से गुजरना अवाम के लिए दुश्वार हो गया।
कराची में सड़कों की खस्ता हाली और ऊंची नीची आड़ी टेढ़ी सड़कों पर गाड़ी चलाना कड़ा इम्तहान बन गया। मिनटों का सफर अब घंटों में तब्दील हो गया। काला बोर्ड से सौदाबाद चौरंगी तक सड़क की तामीर, निकासियाब के निजाम और बरसाती नाले की बहाली और पानी की नई लाइनें डालने का काम सुस्त रवि का शिकार है, जबकि काम मुकम्मल न होने से यहाँ के कारोबारी अफराद का कारोबार ठप होकर रह गया। ऊंची नीची सड़कों से सफर करने से गाहक कतराने लगे हैं। कारोबार न होने से नौबत फाका कशी तक पहुंच गई। हालात से तंग यहाँ के कारोबारी अफराद मेट्रो वन न्यूज के सामने फट पड़े। कहते हैं मुतादिद बार इंतबा के बावजूद सड़कों की मुरम्मत नहीं करवाई गई। रोजाना घंटों यहाँ ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन गया। मैं आपको एक बड़ी कॉमन सी बात बताऊं, कराची शहर माशाल्लाह से रोशनियों का शहर है। इस शहर का आज से नहीं, आज से तकरीबन जब से मैं जवान हुआ ना, मैं इस शहर का यही हाल देख रहा हूँ। अब ये देखें, किसी का कारोबार है, उसकी दुकान है, उसकी दुकान के बिल्कुल सामने आप देख रहे हैं पीछे इतना बड़ा गड़ा हुआ है। यहाँ के लोगों के लिए आसानी पैदा करने के बजाय मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। मतलब कोई तकलीफ में अगर यहाँ से राहगीर गुजर रहा है, खुदा न खास्ता रात में गिर जाए, अंधेरा है, खड्डा हुआ है, इस खड्डे को तकरीबन, मैं यहाँ का मुकामी हूँ, इस खड्डे को तकरीबन मैं 2 माह से देख रहा हूँ, 2 माह से इसी पोजीशन में। खुदारा कराची का ख्याल करें, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट हो, सिटी डिस्ट्रिक्ट हो, कोई भी हो, आवाम के लिए बेहतरी की तरफ निकलें। एक जगह खड्डा होता है तो वो मुसलसल खड्डा रहता है। इस गड्ढे को खुदे हुए कम से कम 2 महीने हो चुके हैं और इस गड्ढे को खुदा था कि इसके अंदर सेवी लाइन भी टूटी हुई है हमारी, कही, और पानी की लाइन है वो भी टूटी हुई है हमारी इसके अंदर। इस खड्डे को तकरीबन 2 महीने हुआ खुदे और इसी खड्डे के अंदर एक मौत भी हो चुकी है। ये सिंध गवर्नमेंट को चाहिए, यहाँ से आने जाने का रास्ता है, आवाम यहाँ से आ रही है, गाड़ियाँ यहाँ से आ रही हैं, स्कूल के बच्चे यहाँ से आते हैं, मदरसे के बच्चे यहाँ से आते हैं, वो सब बीच रोड में तो गुजरते हुए आ रहे हैं। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, अभी तो खैर एक मौत हुई है इसके अंदर, खुदा ना खास्ता कोई बच्चे को एक्सपायर हो जाए, कोई बच्चे का एक्सीडेंट हो जाए, इसका जिम्मेदार कौन होगा? मेरी सिर्फ गुजारिश यही है कि सिंध गवर्नमेंट से कि इस खड्डे को बंद करा जाए, सर्विस के निज़ाम को सही करा जाए, पानी के निज़ाम को सही करा जाए। इस गली के अंदर क्योंकि पानी आई, जब लाइन टूटी तो पानी कैसे आएगा? पानी का निज़ाम बिल्कुल धर्म भरम है, लोगों के कारोबार मुतासिर हो रहे हैं। सिर्फ गवर्नमेंट से ये गुजारिश है कि इस खड्डे को जल्द से जल्द बंद करा जाए। उनका कहना था कि दुकानों के आगे बड़े बड़े गड्ढे पड़े हैं, जबकि धूल मिट्टी से हम सांस की बीमारी में मुब्तला होने लगे हैं। खुदारा हमारे ऊपर रहम करे। यही है कि ये गलत है, मतलब हमारा सारा जो गर्द गुबार डस्ट जो हमारे मुंह सांसों में आ रही है, फेफड़े खराब हो रहे हैं। माल को दिन में 2 से 3 दफा साफ करना पड़ रहा है, हमें बहुत फर्क पड़ रहा है। पार्टी आती है आके जो दूर से ही चली जाती है, माल सब गंदा होता है तो देखने में वाले जो ये समझता है पता नहीं कब का पिछले साल का रखा हुआ है, फ्रेश माल होता है, फिर भी जो कहते हैं यार नहीं ये पुराना माल है। बहुत असर पड़ा है भाईजान, हमारा कारोबार बिल्कुल ख़त्म। ये गड्ढा हमने अपने हाथ से भरा है, कोई भी नहीं आया इसको भरने, सही है ना? ना कोई आएगा, जो खुदाई करी है वो छोड़ के चले गए, सही है ना? अब ये देखें, आप जो करवाना चाहते हैं उसको करवाएं अच्छी तरीके से। काम वैसे ही नहीं है, हालात देख रहे हैं आप, महंगाई कहाँ चली गई है, करवाएं इसको। लोग भी मर रहे हैं, यहाँ गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, गंदगी देखें आप खाली। दुकानदारों ने नए एडमिनिस्ट्रेटर सैफुर रहमान से मुतालबा किया कि यहाँ की सड़क की तामीर फौरी शुरू की जाए ताकि हमें कारोबार करने में आसानी हो। बल्दियाती खबरों से फिलहाल इतना ही।